Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope your studies are going well, you all are doing well at home. Winters भी खत्म हो रहे हैं अब और the school may reopen in the new session but after your exams only. आपके evaluation 3 होने वाले हैं और आपने उसकी पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी. आई एम वेरी मच श्योर कि आपका स्टार्ट हो चुका होगा पढ़ाई वाला पूरा सिस्टम अच्छे से. सिस्टमैटिक जो आपकी पढ़ाई है वो शुरू हो गई होगी. आप जानते हैं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था ग्रामर. आई हैड स्टार्टेड प्रपोजिशंस, रिविजन ऑफ प्रपोजिशंस. आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू what preposition is. Actually it is a revision, but since you have studied this long back you need a thorough revision. तो इसलिए मैंने आपको prepositions पूरा start किया था explanation what are preposition या what is preposition कुछ examples के साथ. आज की वीडियो में हम exercises करेंगे preposition की, but before that let me revise that once again what we did in the previous video. Children, I told you what preposition is. Preposition is also called position word. This I have told you. Preposition is also called position word. इसको position words भी कहते हैं because it tells us the position of name, of person, place, thing, animal, bird, etc. It tells us the position. It tells us where the noun lies. It also connects one noun with another noun. It works like a bridge. It connects one noun or pronoun to the rest of the sentence, or one noun with another noun. It connects. So it is also like it also works like a bridge. I have told you that preposition can be of place or can be of time. What you have to study in your grade is preposition of place. Though there are prepositions of time also, जैसे कि during, after, then since, at, ये जो कुछ prepositions हैं, बट इनके बारे में आप जब थोड़ी सी हायर ग्रेड में जाएंगे तब इनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी हम सिर्फ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस पर ही फोकस करेंगे. प्रपोजिशन ऑफ टाइम को हम बाद में देख लेंगे. ठीक, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विथ सम एक्सरसाइजेस दैट आर गिवन इन योर ग्रामर बुक. ग्रामर बुक से ही शुरू करेंगे. विल स्टार्ट विथ योर ग्रामर बुक. It is a paragraph that is given in your book in unit 16. You can see prepositions like in, on, under, behind. 4 prepositions are used: in, on, under, behind. ये 4 preposition use किया गया है and there is a paragraph given in your book. I will write that paragraph. I will explain you the prepositions, how it is connecting one noun or pronoun with another noun or pronoun, or how it is connecting with noun or pronoun with the rest of the sentences, how it is telling us the position of person, place, thing or bird, animal जो है उसका पोजीशन किस तरह से ये इसमें पता चल रहा है. Now since I cannot draw that picture, I will tell you the page number 67 of your grammar book. Unit 16, you can see a picture. There is a tree, there is a boy, there is a dog and a cat, sun, clouds, ball, bench. ये सारी चीजें इस पिक्चर में बनी हुई हैं. ठीक है, तो मैं इसको लिख रही हूँ आपके लिए और आपको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी. लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. प्रपोजिशन क्या होता है इसका डेफिनेशन मैंने अपने पिछले वीडियो में लिख दिया था, इसीलिए उसको मैंने दोबारा से नहीं लिखा है. नॉट रिटन दैट अगेन. द क्वेश्चन इज, लुक एट द
picture and write the prepositions मैं आपको वो बता दे रही हूँ, आपको यूज क्या करना है. बिटवीन, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, नियर, देन ऑफ. These are the prepositions that you have to use in the paragraph. Between कब use करते हैं? When there is something, when the position of the thing is between two. Again, I am using the word between. When there are two things on both the side of a thing. When there are two things on both the side of a thing, then that thing is in between. उसको between बोलते हैं. इन आपको मैंने बताया था, on भी explain किया था. Let me explain you once again. एक बार और बता देती हूँ. चलिए, I explained you with duster. Again, I will use duster only. This is a book. This is on. The duster is on the book. Duster is over the book. Duster is in front of the book. Duster is behind the book. Duster is near the book. Duster is in the book. And duster is between the markers. Marker के बीच में है duster. Duster is between the marker. Okay? तो ये कुछ prepositions हैं जो मैं आपको उनकी हेल्प से पूरा पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करूंगी. There is a tree dash the garden. Sorry, at the look nest I will read also. There is a tree blank the garden. Look blank the nest, blank the branch, blank the tree. There are 4 eggs dash the nest. A man is taking rest blank the tree. The sun is shining brightly dash the sky. A dog is standing blank the tree. A cat is also sitting dash the dog.
इतना कर लेते हैं, उसके बाद लेट मी रीड फर्स्ट. Where is a tree blank the garden? Look blank the nest, blank the branch, blank the tree. There are 4 eggs, blank the nest. A man is taking rest, blank the tree. The sun is shining brightly, blank the sky. A dog is standing, blank the tree. A cat is also sitting, blank the dog. There is a ball, blank the dog and the cat. There is sun, blank the cloud. Sun wala do hai, this I have added from my side. Now for this you have to look into the book. आपको एक बार book देखना पड़ेगा क्योंकि picture book में है. So look at the picture carefully. पहले आप ध्यान से picture को देखो और first sentence आप फिर उसके बाद देखेंगे. There is a tree dash the garden. अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि preposition जो है वो position word है. कौन सी चीज कहाँ है, उसका प्लेस क्या है, उसका पोजीशन क्या है, वही पता चल रहा है. पहले तो करेक्शन तो हम बाद में देखते हैं, पहले पोजीशन की बात करते हैं. ट्री कहाँ पर है, गार्डन के कहाँ पर है, ओवर है, अंडर है, बिहाइंड है, ऑन है, कहाँ पर है. द ट्री इज इन द गार्डन. पेड़ जो है, ट्री जो है वो गार्डन के अंदर है. इट इज इन द गार्डन. द ट्री इज इन द गार्डन. गार्डन में है. पेड़ कहाँ है, गार्डन में है. लुक ब्लैंक द नेस्ट. नेस्ट का क्या करना है, लुक एट द नेस्ट की तरफ, नेस्ट की तरफ देखिए. लुक एट द नेस्ट. नेस्ट कहाँ है, वेयर इज द नेस्ट. लुक एट द नेस्ट ऑन द ब्रांच. नेस्ट कहाँ पर है, ब्रांच के ऊपर है. किसके ब्रांच के ऊपर है, ब्रांच. लुक एट द नेस्ट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. पेड़ का ब्रांच है. ब्रांच किसका होता है, ट्री का ही होता है ना. सो लुक एट द नेस्ट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. देयर आर 4 eggs. एग्स कहां पर है, इन द नेस्ट. एग्स कहां पर है, नेस्ट के अंदर है. अंदर ही है ना, लुक एट द पिक्चर. नेस्ट के अंदर एग्स हैं. ओवर, ऑन, अंडर, बिहाइंड नहीं है. दे आर इन द नेस्ट. देयर आर 4 eggs in the nest. Now look at the man. A man is taking rest. वो रेस्ट कर रहा है. कहाँ कर रहा है, पेड़ के कहाँ पर कर रहा है, अंडर द ट्री. पेड़ के नीचे. पेड़ के ऊपर भी नहीं है, पेड़ के साइड में भी नहीं है, पेड़ के पास भी नहीं है. इट इज द मैन इज टेकिंग रेस्ट अंडर द ट्री. पेड़ के नीचे. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. आसमान में. सन जो है आसमान में चमक रहा है. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. अ डॉग इज स्टैंडिंग डैश द ट्री. जो डॉग है वो पेड़ के कहाँ खड़ा है, ऊपर, अंडर, नियर. डॉग इज स्टैंडिंग. पेड़ के कहाँ पे, सॉरी बिहाइंड. पेड़ के पीछे खड़ा है. डॉग इज स्टैंडिंग बिहाइंड. पेड़ के पीछे खड़ा है. डॉग इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री. अ कैट इज ऑल्सो सिटिंग ब्लैंक द डॉग. और जो बिल्ली है वो कहाँ बैठी है, कैट कहाँ बैठी है, डॉग के पास, नियर. A cat is also sitting near the dog. There is a ball dash dog and cat. Ball कहाँ है, डॉग और कैट की कहाँ पर है बॉल, between. A ball is between the dog and the cat. There is sun. Not there is sun. The sun is.
सन कहाँ पे है? बिहाइंड द क्लाउड्स, बादलों के पीछे है। द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। नाउ अभी हमको क्या पता चल रहा है? पोजीशन देख रहे हैं। ट्री कहाँ पर है? द ट्री इज इन द गार्डन, गार्डन के अंदर है। ट्री का पोजीशन गार्डन के अंदर है? अच्छा, ट्री क्या है? नाउन है। ट्री क्या है? नाउन है। और ट्री का गार्डन से क्या कनेक्शन है? कि वो गार्डन के अंदर है। तो हमें कैसे पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है इन जो प्रपोजिशन है उससे हमें पता चल रहा है कि ट्री और गार्डन का क्या कनेक्शन है। सो हियर वन नाउन इज कनेक्टेड टू अनदर नाउन थ्रू प्रपोजिशन इन। सो दिस इन इज वर्किंग एज अ ब्रिज। इट इज वर्किंग एज अ ब्रिज। इट इज कनेक्टिंग वन नाउन टू अनदर नाउन। एक नाउन को दूसरे नाउन से वो कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज कनेक्टिंग नाउन टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। देयर इज अ ट्री इन द गार्डन। नेक्स्ट, लुक एट द नेस्ट। अब क्या करना है? हमें किसकी तरफ देखना है? हमें देखना है मगर किधर? एट, किस तरफ? एट द नेस्ट, नेस्ट की तरफ देखना है। सो यहाँ पर नेस्ट और लुकिंग में क्या कनेक्शन है कि हमें देखो, कहाँ देखो? नेस्ट की तरफ। हमारी आइज का पोजीशन हमें कहाँ देखना है? नेस्ट की तरफ देखना है। नेस्ट कहाँ है? ऑन द ब्रांच। पोजीशन क्या है नेस्ट का? ब्रांच के ऊपर है। नेस्ट और ब्रांच में क्या कनेक्शन है कि नेस्ट ब्रांच के ऊपर है। और ये कैसे पता चल रहा है? थ्रू द प्रपोजिशन ऑन। ब्रांच किसका है? ट्री का है। ब्रांच और ट्री में क्या कनेक्शन है कि ब्रांच जो है उस ट्री का है, ऑफ द ट्री, ब्रांच ऑफ द ट्री। 4 eggs कहां पर है? एग्स का पोजीशन कहां है? इन द नेस्ट। एग्स और नेस्ट में क्या कनेक्शन है कि एग्स नेस्ट के अंदर है। और हमें कैसे पता चल रहा? थ्रू प्रपोजिशन इन। वो मैन का पोजीशन क्या है? अंडर द ट्री। अंडर वर्ड जो है मैन को बाकी के सेंटेंस के साथ वो कनेक्ट कर रहा है। एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट कर रहा है। मैन इज कनेक्टेड टू ट्री। कैसे पता चल रहा है? मैन जो है उस ट्री के अंडर है, उसके पेड़ के नीचे। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। सन कहाँ पर है? आसमान में है। सन और स्काई का क्या रिलेशन है कि सन इज इन द स्काई। डॉग, डॉग का पोजीशन है बिहाइंड द ट्री। डॉग और ट्री में क्या कनेक्शन है कि डॉग ट्री के पीछे है। ठीक है, कैट का क्या पोजीशन है कि वो डॉग के नियर है। हमें कैसे पता चल रहा है डॉग और कैट का रिलेशन? थ्रू द वर्ड नियर। कैट जो है वो डॉग के नियर है। बॉल का पोजीशन क्या है? कैट और डॉग के बीच में है। द पोजीशन, द प्लेस ऑफ बॉल इज बिटवीन डॉग एंड कैट। और सन आसमान में तो है पर वो कहाँ पर है? इट इज बिहाइंड द क्लाउड्स। उसका पोजीशन कहाँ है? क्लाउड्स के पीछे है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पैराग्राफ। ये हमारा पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया प्रपोजिशन का। यू कैन गो थ्रू इट। चलो, लेट्स डू अनदर एक्सरसाइज। Now what you have to do? Circle the prepositions. Exercise is now I'm going to write some sentences. मैं कुछ sentences लिखूंगी and then you have to सर्कल द प्रपोजिशंस। आपको उस सेंटेंस में
प्रपोजिशन पहचानना है और उसको फिर सर्कल करना है, ठीक है। तो लेट मी डू दैट। नंबर 1, the dog is on the mat. Second sentence is the toffees are in the jar. Then number 3 is my friend's house is near my house. Number 4, Diya is sitting behind Riya. Number 5 is the aeroplane flew over the building. Number 6 is Ravi is sitting in front of the blackboard. चलो पहले इतना देख लेते हैं, ठीक है। जो sentences which I have written, let's go through it. First sentence is the dog is on the mat. अब इस सेंटेंस में हमें दो नाउन दिख रहे हैं, एक है डॉग और दूसरा है मैट, ओके। और इन दोनों में क्या कनेक्शन है? डॉग का मैट से क्या, किस तरह से कनेक्टेड है? डॉग मैट के ऊपर बैठा है, द डॉग इज ऑन द मैट। डॉग कहाँ है? मैट के ऊपर है। डॉग की पोजीशन क्या है? ऑन द मैट। तो हमें क्या करना है? इसको सर्कल करना है। द डॉग इज ऑन द मैट, गॉट इट? नेक्स्ट, द टॉफीज आर इन द जार. अगेन वी हैव टू नाउन्स, टॉफीज एंड जार. दोनों में क्या कनेक्शन है? हाउ टॉफीज आर कनेक्टेड टू जार? हाउ टॉफीज आर कनेक्टेड टू जार? टॉफीज का पोजीशन क्या है इन रिलेशन टू जार? टॉफीज आर इन द जार. उनका प्लेस क्या है टॉफी का? जार के अंदर है. अगर मैं सिर्फ द टॉफीज बोलूं, द टॉफीज आर द जार, कोई मीनिंग बन रहा है? द टॉफीज आर द जार. टॉफीज आर अलग है, द जार अलग है, कोई रिलेशन है? नहीं है. लेकिन जैसे ही हमने इन लगाया, हमें पता चल गया कि टॉफीज जार के अंदर है. गॉट इट? नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स हाउस इज नियर माई हाउस. यहाँ पे फ्रेंड्स का हाउस है और माई हाउस है. दो तरह के घर है, फ्रेंड का घर और मेरा घर. दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों किस तरह से कनेक्टेड है कि मेरे फ्रेंड का घर मेरे घर के पास है. अगर मैं सिर्फ ये बोलती हूँ माई फ्रेंड्स हाउस, माई हाउस, माई फ्रेंड्स हाउस इज माई हाउस. मेरे फ्रेंड का घर मेरा घर नहीं है, माई फ्रेंड्स हाउस माई हाउस, नो रिलेशन. बट जैसे ही हमने नियर लिखा, हमें पता चल गया कि फ्रेंड का घर मेरे घर के पास है. सो द वर्ड नियर कनेक्टेड द टू नाउन्स, माई फ्रेंड्स हाउस एंड माई हाउस, कि वो क्या है? नियर है.
Next is Diya is sitting behind Riya. Again we have two nouns, Diya and Riya. दोनों में क्या कनेक्शन है? Diya is sitting, Riya. कोई मतलब बन रहा है? Diya is sitting, Riya. रिया अलग है, दिया अलग है, दिया इज सिटिंग, लेकिन कोई दिया इज सिटिंग का मीनिंग बन रहा है कि दिया बैठी है। पर अगर मैं रिया साथ में बोलते रहे तो दिया का रिया के साथ क्या संबंध है? दिया के बैठने का रिया से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि दिया जो है वो रिया के पीछे बैठी है। पोजीशन क्या है दिया की? बिहाइंड रिया, रिया के पीछे है। अदरवाइज दिया इज सिटिंग, हमें पता है दिया बैठी है, फिर उसमें यहां तक तो कंप्लीट है दिया इज सिटिंग। पर जब हम रिया में बोलते हैं दिया इज सिटिंग रिया, तो कुछ मतलब नहीं बन रहा है। पर जैसे ही हमने बिहाइंड लगाया तो हमें क्लियर मीनिंग हो गया कि दिया का रिया से क्या कनेक्शन है, कि वो दिया जो है रिया के पीछे बैठी है। पोजीशन है दिया की बिहाइंड रिया। नेक्स्ट इज द एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग। वी हैव बिल्डिंग, वी हैव एरोप्लेन। अब दोनों में क्या कनेक्शन है? एरोप्लेन का बिल्डिंग से क्या रिलेशन है कि एरोप्लेन जो है बिल्डिंग के ऊपर से उड़ा, बिल्डिंग के ऊपर नहीं उड़ा, ऊपर से उड़ा। तो कैसे पता चला हमें? ओवरवर्ड से, ओवरवर्ड से पता चला। अगर वैसे बोले द एरोप्लेन फ्लू द बिल्डिंग, एरोप्लेन फ्लू अलग हो गया, द बिल्डिंग अलग हो गया, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब ओवरवर्ड डाल दिया तो दोनों में कनेक्शन हो गया। द एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग। अगर सिर्फ आप इतना पढ़ो द एरोप्लेन फ्लू, लिख दिया द बिल्डिंग, बिल्डिंग, दो जो पार्ट्स हैं द एरोप्लेन फ्लू द बिल्डिंग, दोनों को साथ में अगर बोलते हैं तो कोई मीनिंग बनता ही नहीं है। द एरोप्लेन फ्लू द बिल्डिंग, इसका मतलब एरोप्लेन ने बिल्डिंग को उड़ा दिया, कोई मीनिंग नहीं बन रहा। पर ओवर लगाते ही पता चल गया कि एरोप्लेन जो है बिल्डिंग के ऊपर से उड़ा, तो ये कनेक्ट हुआ। प्लस एरोप्लेन की पोजीशन हमें पता चली कि वो बिल्डिंग के ऊपर से उड़ा है। नेक्स्ट इज रवि इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, यहाँ ये रवि है। वी हैव टू नाउन्स एंड दोनों में क्या कनेक्शन है? रवि इज सिटिंग द ब्लैक बोर्ड, कोई मतलब है? रवि इज सिटिंग तो समझ में रवि बैठा है। द ब्लैक बोर्ड, रवि का ब्लैक बोर्ड से क्या संबंध है वो हमें पता चलता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ एक प्रपोजिशन है, ब्लैक बोर्ड के सामने बैठा है। रवि का पोजीशन क्या है? ब्लैक बोर्ड के सामने, पीछे नहीं, सामने। रवि इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड। तो सिर्फ रवि बोलोगे, रवि इज सिटिंग बोलने से तो कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, रवि इज सिटिंग, यहां तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन जब हम उसके साथ द ब्लैक बोर्ड बोल देते हैं तो कोई मीनिंग नहीं बनता है। द रवि इज सिटिंग, सॉरी, रवि इज सिटिंग द ब्लैक बोर्ड। इन फ्रंट ऑफ ब्लैक बोर्ड डालते हैं तो इसका पता चलता है कि रवि का ब्लैक बोर्ड के साथ क्या कनेक्शन है, कि वो उसके सामने बैठा है। गॉट इट? तो इस तरह से हमने जो हमने वर्ड्स को सर्कल किया है वो सारे क्या है? दे ऑल आर प्रपोजिशंस, जिनसे हमें नाउन्स की पोजीशन पता चल रही है इन रिलेशन टू अदर नाउन इन द सेंटेंस। पोजीशन ऑफ वन नाउन इन रिलेशन टू अदर नाउन इन द सेंटेंस, या कनेक्शन ऑफ वन नाउन टू अदर नाउन इन द सेंटेंसेस। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ रहा है, बट दैट इज नॉट ऑल। अभी हमें काफ़ी एक्सरसाइजेज और करनी है प्रपोजिशंस की, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आप आगे जब आप हायर ग्रेड में जाओगे तो भी आपको ये पढ़ना ही है। तो लेट्स क्लियर योर कॉन्सेप्ट। जो भी हमें पढ़ने हैं प्रपोजिशंस में उसको आप क्लियर कर लीजिए। एक्सरसाइज हम और करेंगे, बट आज के वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। बाकी के एक्सरसाइजेस हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो अगले वीडियो में मिलेंगे तो करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है वो आप अपने ऑनलाइन क्लास में मुझसे क्लियर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।